عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا۔ ملت نے صلح کلیت نہیں سکھائی، ملت نے میٹھا میٹھا نہیں سکھایا، ملت نے وہ سکھایا جو بدر و حنین میں تھا، ملت نے وہ سکھایا جو کربلا میں امام حسین نے سکھایا، ملت نے وہ سکھایا جو اللہ اکبر اعلیٰ حضرت نے بتایا، ملت نے وہ خنجر چلایا تو اللہ اکبر دیوبندیت ذبح ہو گئی، نجدیت ذبح ہو گئی، معصوم ملت نے خنجر چلایا تطہیریت مردہ ہو گئی، دعوتیت ذبح ہو گئی، اور وہ خنجر چلتا رہے گا، نبی کا عشق کا چرچا ہوتا رہے گا، اور یہ آواز آتی رہے گی، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے چل جانے والے، ان کا چرچا ہوتا رہے گا، ان کا چرچا چلتا رہے گا، نہ نبی کا چرچا رکا، نہ نبی کے غلاموں کا رکے گا، نہ حسنین کا چرچا رکا، نہ حسنین کے عاشقوں کا رکے گا، نہ غوث اعظم کا رکا، نہ غوث اعظم قادری غلاموں کا رکے گا، چرچا ہوتا رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے غوث اعظم کا چرچا کیا، انہوں نے خاندان کا نہیں، انہوں نے حسنین کریمین کا چرچا کیا، انہوں نے تعزیہ رکھ کر سبیل حسینی لگا کر لنگر حسینی لگا کر یہ پیغام دے دیا، میں بظاہر رہوں نہ رہوں، نبی کے نوازوں کا چرچا رہے گا، نبی کے نوازوں کی سبیل رہے گی، سبیل رہے گی تو معصوم ملت کا بھی چرچا رہے گا، معصوم ملت کا بھی ذکر رہے گا۔ انہوں نے صلح کلیت نہیں سکھائی ہے، وہی خنجر چلایا تو دیوبندیت کا کلیجہ چیر دیا، نجدیت کا کلیجہ چیر دیا، کوئی مانے نہ مانے، جو 1000 بار جس کی غرض ہو، آج اس جنازے پہ آئے تو توبہ کر لے اگر شرکت کری ہو وہابیوں کے ساتھ، توبہ کر لے اگر شرکت کری ہو نجدیوں کے ساتھ، توبہ کر لے اگر شرکت کری ہو نبی کے غداروں کے ساتھ، اس لیے کہ نبی کے ایک عاشق کا آج جنازہ اٹھے گا، اور نبی کے ایک عاشق کا جب جنازہ اٹھے گا تو دیوبند کا جنازہ نکل جائے گا، نجدیت کا جنازہ نکل جائے گا، دعوتیت کا جنازہ نکل جائے گا، صلح کلیت کا جنازہ نکل جائے گا، نکال دیا انہوں نے جنازہ، نکال دیا انہوں نے جنازہ دیوبندیت کا، اس لیے کہ انہوں نے چرچا نبی کے عاشقوں کا کیا ہے، وہ پیغام دیا جو پیغام کربلا میں امام حسین نے دیا، کوئی ساتھ رہے نہ رہے، نبی کا دامن ساتھ نبی کی غلامی رہنا چاہیے، اس لیے کہ قبر میں کوئی کام نہ آئے گا، نبی کی غلامی کام آئے گا، خدا کی اگر بچنا ہے تو اس جنازے پر اب وعدہ کر کے جاؤ کہ آج نبی کے غداروں کے ساتھ نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے، تو معصوم ملت کا فیض ملے گا، تو ان کا کرم تمہارے شامل حال رہے گا، ان کا کرم تمہارے ساتھ میں رہے گا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ لوگ اس کلر کے نہیں ہوتے، فرمایا خیال گزرا، فرمایا رات میں میں لیٹا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مشرف ہوئی کہ ہاتھ میں اس کلر کے صاحبزادے، فرمایا یہ بھی ہمارے ہیں، سبحان اللہ، حضرت سبحان اللہ، یہ معاملات خود حضرت میں گواہ ہوں اس بات کا، خود فرمایا کہ یہ میں نے خود حضور کی رات میں لیٹا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، حضور یہ فرما رہے ہیں، یہ وہ ذات ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہے
बेकसी कैसी है पूछो कोई गुजरा क्या है, मलाइक कर मारूफ के मुजरिम है। एक एक चीज का जवाब देना है। तुम कहते हो जान दे देंगे हुजूर के नाम पर, अरे तुमसे तो वलीमा न छूटा, अरे तुमसे तो रोटी और रोटी नहीं छूटी, अरे तुमसे तो खाना नहीं छूटा, तुम नबी के नाम पर जान देने की बात कर रहे हो। आज तौबा कर लो, आज इस जनाजे अल्लाह वाले के जनाजे पे वादा कर लो, आका किसी का साथ रहे ना रहे, अहले बैत का साथ इंशाअल्लाह उसका रहे हमारा दाखिला हश्र में होगा, हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। ये बात बैठी है, इन्हीं से तो हमने सीखा है, इन्हीं की गोदों में तो खेले हैं, इन्हीं ने तो उंगलियां पकड़ के चलाया है, इन्हीं ने सब सिखाया है। इन्होंने बताया कि यार कर ले, प्यार कर ले, बेड़ा पार कर ले। आला हज़रत ने बताया ऐश तो तेरे सस्ते, जलने से जुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। ये वो जनाजा है अल्लाह के वली का जनाजा है, जिसमें चेहरे को देखोगे तो चेहरा देखना भी इबादत है, जिसमें चेहरे की ज़ियारत भी इबादत है, जिसमें ताला देना भी ईमान है, जिसमें ताला लगाओ तो जन्नत मिलेगी, चेहरा देखो तो जन्नत मिलेगी, जिसमें शिरकत करो तो जन्नत मिलेगी। ये वो वली का जनाजा है जिसने ये कुरान पढ़ रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, जिसकी कलमा शरीयत के मुताबिक, जिसकी कलमा शरीयत कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और दिखा दे अपने दिलो पास प्यारे आके देख के चला तेरा, और नहीं छुट्टी खास है और खाजा मोइनों की हसन तेरा होगा रोज अकीदा तेरा। आवाज मुस्तफा जाने छुपाएंगे आजम को छुपाएंगे, बनते जाएंगे, आला हज़रत भी छुपाएंगे। वहाबियत
وہ بندیا ہندوستان کے غدار، ہندوستان کے غدار، ہندوستان کے غدار، دیش کے غدار، وہابیت، دیوبندیت، آق حسین، آق حسین، آق حسین، آق حسین، آق حسین، مولا حسین، آق حسین۔ جو بنتے جائیں گے غوث اعظم کو چھپائیں گے، جو بنتے جائیں گے اعلیٰ حضرت بھی چھپائیں گے، جو بنتے جائیں گے غریب طبقات بھی چھپائیں گے، جو بنتے جائیں گے شیخ سنت چھپائیں گے، جو بنتے جائیں گے مشاہد ملت بھی چھپائیں گے۔ سمجھو گے پرانا میرے حسین کا ہے پرانا، میرے حسین کا ہے پرانا، میرے حسین کا ہے پرانا، میرے حسین کا ہے پرانا۔ فیضان امام علی مقام زندہ باد، فیضان حسنین کریمین زندہ باد، فیضان پنجتن پاک زندہ باد، فیضان عشر مبشرہ زندہ باد، فیضان بدر و احد و حنین زندہ باد، فیضان شہداء اسلام زندہ باد، فیضان شہداء کربلا زندہ باد، فیضان غوث پاک زندہ باد، فیضان غریب نواز زندہ باد، فیضان سرکار اعلی حضرت زندہ باد، سرکار غریب نواز زندہ باد، فیضان سرکار اعلی حضرت زندہ باد، فیضان مغموم سمنا زندہ باد، فیضان صابر پاک زندہ باد، فیضان شامل لکھنوی زندہ باد، فیضان شہنشاہ دیوا زندہ باد، فیضان حضور مظہر اعلی حضرت زندہ باد، فیضان حضور مشاہد ملت زندہ باد، فیضان حضور معصوم ملت زندہ باد، فیضان جملہ اولیاء اکرام۔ یہ جو ہم تازیاں بناتے ہیں، یہ جو ہم تازیاں بناتے ہیں، یہ میرے حسین کا ہے یاد آنا، میرے حسین کا ہے یاد آنا، تازیاں بناتے ہیں، یہ جو ہم تازیاں بناتے ہیں، یاد آتا میرے حسین کا ہے یاد آنا، میرے حسین کا ہے یاد آنا، جسے تم سمجھتے ہو، جسے تم سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے شامیانہ، کیا حسین کا ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسین کا ہے مانا، میرے حسین کا ہے
है कुल ज़माना, मेरे हुसैन का है कुल ज़माना। क्या बताऊं क्या हुसैन का है कुल ज़माना, मेरे हुसैन का है कुल ज़माना, मेरे हुसैन का है कुल ज़माना। ये लेते शेरे रज़ा ये लेते हैं, नहीं नाम मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन का है। जो चले हैं सूए जिना, ये चले हैं जो सूए जिना, ये बुलाना मेरे हुसैन का है, ये बुलाना मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन का है। जितनी गाड़ियां हैं वो पूरे फ्लैट बाग में खड़ी कर दीजिए। फोर व्हीलर जितनी गाड़ियां हैं वो जहाँ खाना लंगर है उसके बाद में गाड़ी सब जाएगी, सब तय करके वही पहुंचाए, यहाँ पे रास्ता खाली कर। जितनी गाड़ियां हैं वो पूरे फ्लैट बाग में खड़ी कर दीजिए। मदरसे के सामने कोई भी गाड़ी ना खड़ी करें। आप लोग लोग निकालना उतारेंगे।
یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو بس میرے پیر کے جو ترے مزار چلا گیا سن کون میرا غم گزار چلا گیا وہ سخن شناس وہ دوردی وہ گداوار وہ مہیدی وہ ہجرے علوم دی میرا تاجدار چلا گیا کمی تو بس میرے پیر کی کمی تو بس میرے پیر کی میرا غم گزرا مسجد کے گیٹ پر جو لوگ ہیں سب تک ہو جائیے آپ نکالتے رہیے اسمتی والے اسمتی کمیٹی والے جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے جو ان کو باہر نکالیے ان کو باہر نکالیے مسجد کے گیٹ سے باہر نکالیے دیکھو کھانے کرنے کا رکھیے ساڑیاں کامیانہ پورا طرح بھیا باہر نکالیے اندر آنے والوں اندر آنے والا راستہ ہو دیجیے باہر کا چلتے رہے آپ لوگ چلتے رہے نہیں ہے رکنا نہیں ہے پیچھے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق فیض فاروق اعظم فیض ہمارے ذکر رہے فیض مولانا کائنات ایک چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی
اوپر جان نچھاور کرتے رہنا. معصوم ملت کا پیغام یہ نہیں ہے کہ پہلے معصوم ملت کو مانو. معصوم ملت کا پیغام یہ ہے کہ پہلے وہابیوں سے دور ہو جاؤ, پھر معصوم ملت کا نعرہ لگاؤ, پھر معصوم ملت کا گیت گاؤ. اور جو ہمارے سے غریب ہے تو اس سے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایسے شروع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. دامن مصطفیٰ ان بزرگوں نے اپنا دامن پھیلایا ہی نہیں, انہوں نے اپنے دامن کا چکر نہیں لگوایا. اگر یہ دامن کا چکر لگاتے تو ان کے علاوہ لوگوں کو مرید نہیں بننا آتا. انہوں نے مرید کم پیر زیادہ بنایا. بلا سے مرید ہو جاؤ, بلا سے مرید ہو جاؤ, بلا سے مرید ہو جاؤ. اور جب ان سے مرید ہو جاؤ تو بولے مصطفیٰ والے بن جاؤ, آقا والے بن جاؤ, سرکار والے بن جاؤ. یہی آزاد آن سے پوچھنے جا کے انہوں نے ظاہر کہا میرے حضرت ہم کسی سے ہوں گے نہیں ہوں گے تو آپ سے مرید ہوں گے. تو شیر کے شیر کے اوپر مرید کیا, میرے سے وہ کیا پیغام دیا, میرے گانے میں کیا بولے پہلے نہیں کہا تھا. ہم تقریروں میں کہتے تھے ہم سنیوں کا جنازہ اور وہابیوں کا دیکھنا, ان کی برات جائے گی تو لگے گا جنازہ جا رہا ہے, اور سنیوں کا جنازہ آئے گا لگے گا برات آ رہی ہے. یہ دیکھ لو آج معصوم رضا معصوم ملت مینا بنے ہیں اور براتی ساتھ میں چل رہے ہیں, اور جیت کے پہ رہے ہیں, جیت کے پہ مستوں کے پہ دیوانے بن کے پہ کان دیتا ہے ہاں دیکھ لو پھولوں کی برسات رکھنا ہے تو گلاب کی برسات رکھنا ہے تو کشمیر کا چرچا رہے گا, ناصر ملت کا چرچا رہے گا, مشہور ملت کا چرچا رہے گا, مشاہد ملت کا چرچا رہے گا, رائے ان کا چرچا رہے گا. بڑے ساتھ لے جاؤ چل ملت یزیدیت عطاریت تطہیریت تطہیری ہمارے مصطفیٰ بے بس نہیں ہے, اور ان کو چاہنے والوں کا یہ عالم ہے کہ پھر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. تطہیریت عطاریت پاکستانی تنظیم دعوت ریاسی, پاکستانی تنظیم دعوت ریاسی سن لے ہمیں کسی پاکستان کی تنظیم دعوت ریاسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے معصوم ملت کا سہارا کافی ہے. پیارے حبیب کے دربار پیارے نبی کا نام لے, پیارے حبیب کے دربار پیارے نبی. قاضی رشید چلنے دیجیے ساتھ میں آگے لائے اور یہ پیغام دیتا جائے کہ حسین کو مت بھولنا, حسین کا نعرہ لگاتا رہتا, حسین کے گیت گاتا رہتا. اور یہی ایک سنیا حضور معصوم ملت نے, حضور شیر سنت نے, اور پکارتے رہے آپ نے کچھ نہیں کہے پیارے حبیب کے دربار پیارے نبی کا نام لے, پیارے حبیب کے دربار پیارے نبی پیارے حبیب کے دربار پیارے نبی پیارے حبیب کے دربار پیارے نبی کا نام لے. اپنے مصطفیٰ گائے رسول نبی کے شیر کیسے ہوتے ہیں, علی کے شیر کیسے ہوتے ہیں, حسن کے شیر کیسے ہوتے ہیں, حسین کے شیر کیسے ہوتے ہیں, علی اکبر کے شیر کیسے ہوتے ہیں, عباس کے بازی کیسے ہوتے ہیں, علی اصغر کی بہادری کیسی ہوتی ہے, اکبر کی جوانی کیسی ہوتی ہے. وہ بٹھائے گا اور اعلان کرے گا اس سے اور جننے سے کیا مطلب. بہادری دین ہے, دین ہے, دین ہے. ہم رسول اللہ ہے, جنت رسول اللہ. علی اکبر جھکا, عباس نمبردار جھکا, علی اصغر جھکا, حضرت زینب جھکا, سیدہ سکینہ جھکا, حضرت فاطمہ جھکا, غوث اعظم
زندہ, خواجہ اجمیری زندہ, وارث پاک زندہ, جابر پاک زندہ, سید سالار زندہ, مسعود غازی زندہ, خانقاہ صدرہ زندہ, خانقاہ کچھوٹا زندہ, اعلیٰ حضرت زندہ, سرکار مولانا زندہ, شیر سنت زندہ, مشاہد ملت زندہ, مشہور ملت زندہ. مشہور ملت تو ایسے زندہ بولے بہاروں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں 11 مہینے بعد نکل کے دکھا دوں. ارے تم مشہور ملت 11 مہینے کے بعد نکلے اور جنازہ نکلا دکھایا. جب ان کے دیوانوں کا یہ عالم ہے تو امام حسین کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت زندہ, شیر سنت زندہ, مشہور شاعر ملت زندہ, مشہور ملت زندہ, اور سرکار معصوم ملت زندہ. چمن چمن گلی گلی, چمن چمن گلی گلی, چمن چمن گلی گلی, مصطفیٰ کے رنگے فاطمہ کے دنیا سے بتاتے رہے ہیں. علاقے کے سنیے میرے بھائی نے دیکھے اگر قاضیہ شریف اپنا غلط ہوتا تو معصوم ملت اپنے مدرسے کے دروازے پہ بنوا کے نہ رکھتے, اور صرف دروازے پہ نہیں رکھا بلکہ فرما دیا قاضیہ شریف میرے جنازے کے آگے آگے جائے گا, میرے ساتھ میں جائے گا. انتقال سے پہلے فرمانے لگے قرآن بھیا سے ناز شریف لگا, ہم ناز شریف سے پوچھے کون سی ناز شریف لگا دو, فرمایا ہے لگا دو, میں راگا کی یاد آ رہی ہے, لگا دو ناز شریف. ہم نے پوچھا کون سی لگا دو, فرمایا لگا دو دوست پر آئی میرا دے بٹو بگاتے ہیں جمعے خاطر شاہ حبیب حق بلاتے ہیں جمیل قادر. ہم سمجھ نہیں پا اپنی ناشد کی سجا ہے, ابو کو پتا تھا آج مصطفیٰ کے پاس جانا ہے, آج دیدار کرنا ہے. پیارے حبیب کو بہت غریب کیا معصومیت کو آیا ہے اور ان کے مسلک ان کے دس کو آیا ہے. دار جنت
जन्नतियों की सरदार इमाम हुसैन की वालिदा, नबी की बेटी, नबी की प्यारी, नबी की लाडली सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ज़ाहिरा सरदार खातून जन्नत, उसी के शहजादे का नूर इधर भी आया है, मिल जाएगा तुमको। देखो ये नूर मुस्तफा है जो अपने आशिकों को जगमगाता है, जो अपने दीवानों को रोशन करवाता है। उनके दीवाने चाहे पूरब में हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, नबी के दीवाने हैं जो जगमगाते रहते हैं, नूर से मुनव्वर रहते हैं, नूर से रोशन रहते हैं। उसी का नूर सुभान अल्लाह आज मासूम मिल्लत के चेहरे पर नजर आ रहा है, आज उनके जनाजे में नजर आ रहा है, आज उनके जुलूस में नजर आ रहा है। लिहाजा झूठ के बहे फातिमा के लाडले तार है, फातिमा के लाडले आखिरी तार है, हश्र का हंगाम बरपा है, हश्र का हंगाम बरपा है। बना लें, जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। दक्षिण जानिब से लेकर आए हैं, दक्षिण जानिब से लेकर आए हैं। दक्षिण जानिब से लेकर आए हैं। خير خلق
हिंदुस्तान के गद्दारों, हिंदुस्तान हमारा है, हमारे और सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करते हैं, यहाँ जो पाकिस्तानी है तंजीमें उन्हें बैन किया जाए, हमारा है, देश के गद्दारों को बाहर किया जाए। हमारे दादा पीर ने कहा था पाकिस्तान मत बनाओ, हिंदुस्तानी हो, हमारा वतन है, हमारा है। देवबंदी महावीर इन गद्दारों को निकालो। मियां तुम समझते थे व्हील चेयर पर हैं, तुम सबके पैर समेट लिए हैं। अरे वहाबी नजदी कुत्तों, तंजीरी कुत्तों सुनो, पैर समेटे थे, अब शेर ने पैर फैला लो। अगर गलती हो गई हो तो आज भी तौबा कर लो, माफी मांग लो। बहुत पीर हैं, एकदम पीर, हाजी काकड़ पीर, दुरोज पीर, बिलेल पीर, वाले पीर, बाबा पीर, शैदी पीर, पप्पा पीर, ये हुसैनी पीर। मुर्दाबाद को सजाया गया आज सल्ले अला नज़्मे कौनो मुर्दाबाद को सजाया गया आज सल्ले अला, आज सल्ले अला साहिबा रहमतों का लगाया गया आज सल्ले अला साहिबा रहमतों का लगाया गया आज सल्ले अला, आज सल्ले अला। अंबिया औलिया को बुलाया गया आज सल्ले अला, आज सल्ले अला। इब्ने ज़हरा को दूल्हा बनाया गया आज सल्ले अला, इब्ने ज़हरा को दूल्हा बनाया गया आज सल्ले अला। अरे दाढ़ी रखने वाले वहाबियों शर्म करो, हिंदुओं से सीख लो। आज हिंदू भी अदब करते दरगाहों में जाते हैं। तुम देवबंदियों ना नबी के हो, ना रसूल के हो, ना देश के हो, तुम्हारे लिए ही मोदी को लाया गया, तुम्हारे लिए ही मोदी को लाया गया। क्योंकि हिंदू आज भी
जगतपुर शरीफ जा रहा है, पुलिस वाले आज भी सलामी दे रहे हैं, क्यों सलामी ना दे? सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है, वो अली है, अली है हाँ अली है, वो अली है। हुजूर शेर हिंदुस्तान ने तो 20 साल पहले कहा, कांग्रेस ने वहाबियों को मारा था, तब तुमने नहीं कहा, कहाँ मर गए थे मुल्ला? आज कहते बीजेपी योगी समाजवादी ने जब गदवा को मारा तब कहाँ मर गए थे? हम मरने से नहीं डरते हैं। समाजवादी के मुखिया के मुंह पे कह के आए थे, अखिलेश आजम खान वहाबी को निकाल दो वरना सभा सफा हो जाएगी, क्योंकि हम आती जाती सरकारों पे भरोसा नहीं करते। न बदली है न बदलेगी हुकूमत में ख्वाजा की, न बदली है न बदलेगी हुकूमत में ख्वाजा की। मेरा ख्वाजा बादशाह मुझे कोई गम नहीं, बीजेपी के दौर में हालात खराब है, तुम्हारे खराब होंगे हमारे सही है। उसका ईमान सही, उसके हालात सही। फिर कहते भाई देखो आजम खां पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, अत्याचार नहीं होगा जब मज़ारों को तुमने रामपुर में तोड़ा और शहीदों पे बुलडोजर चलाया, तो अली को चलाना आया और सादा बुलडोजर मारा लाया, या तो बगले या तो। तब मैंने कहा था सपा के बारे में, तुमने इनकी पावर देखी है, अली की पावर सुनो गौस की, मैं कभी चैन से सोता नहीं रुकती है, आपकी बिजली धारे चढ़ जाती है, उठता है जब ऐसा तेरा। तो आजम खान ने ऐसा किया, उनके क्या हो रहा है? धतूरा बोया तो लखनऊ की तस्वीर नहीं करते, जब बात किए उसको भटकोगे और हिंदू तो आज भी दरगाहों पे जा रहे हैं। देखिए मरदम माही में मुंबई पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट है, उस कमिश्नर ने कहा सीख लो मुल्ला, हिंदू से सीख लो। मैं नहीं कहता, बरेलवी कहते हो, रजा कहते हैं, सितम गोली वहाबी हिंदू का तेरा काम है। उसका बयान छपा है कि तुम्हारे बच्चे कनाडा, तारिक जलील, अली मिर्जा, क्यों? तुम्हारे पापा का देश है पाकिस्तान, खाओगे हिंदुस्तान की रोटी, खाओगे पाकिस्तान की, देश हमारा है, खाएंगे लड़ी की खाएंगे और नारा लगाएंगे तो पाकिस्तानी जमातों को भगाएंगे, सब बंदी कर लीजिए। अब नमाज की सातों का वक्त करीब से करीब तर है। ये शहजादा मासूम, ये सरकार मजहर आला हजरत के जनाजा शरीफ है। एक मिनट बस एक बात सुन लीजिए आप, ये सरकार मुफ्ती आदम तुनीबी शरीफ, सरकार मासूम मिल्लत का जनाजा शरीफ है। आप लोग सब बंदी कीजिए और सब बंदी के अंदर एक वादा कीजिए कि 50 साल पिपरा माहिम शरीफ की खिदमत के अंदर इस मर्द मुजाहिद ने जो मसलक दिया है उस मसलक पे कायम रहेंगे। इस मुजाहिद ने मसलक ये दिया, जहाँ वहाबी होगे वहाँ खाना नहीं खाएंगे, देवबंदियों के साथ खाना नहीं खाएंगे, जमात के साथ खाना नहीं खाएंगे, जमात इस्लामी के साथ खाना नहीं खाएंगे, इस्लामी के साथ याराना कश्मीरियों के साथ दोस्ती, अपने नबी का खाएंगे और अपने नबी का हम बोलेंगे। और ये पैगाम अपनी जिंदगी में दिया, जवानी में दिया, व्हील चेयर पे रहा तो ये पैगाम देता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जात है। मेरे छोटे भाई हजरत अल्लामा अनादिल्लाह साहब किबला ने ख्वाब देखा कि हजरत शाहजानी मस्जिद के अंदर नमाज अदा फरमा रहे हैं। सरकार मासूम मिल्लत गुंबद करीब नमाज से आवाज आ रही है। क्या आवाज आती है? आवाज आती है, ऐ लोगों
ये वो जात है जिस जात के सब्जे के अंदर गरीब नवाज में दुआएं कबूल कबूल होती है। ये वो जात मासूम मिल्लत की है। मैं खुद गवाहूं, हजरत ने मुझसे फरमाया, मियाँ एक सैदानी आई थी, उनका रंग हल्का सा काला था, उनका रंग जो सौला था। मेरे जहन में ख्याल आया कि सैयद लोग तो सौले नहीं होते हैं। फरमाया बेटा ख्याल आया चला गया। उसके बाद मैंने पूछा हुजूर फिर क्या हुआ? फरमाया रात में मैं सोया, जब रात सोया तो सोने के अंदर मुझे मदीने के ताजदार महबूबे रब्बुल आलमीन शफीए आज़म इमामुर रसूल इमामुल नबीय्यीन हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। हुजूर की दाहिनी जानिब कुछ शहजादे और शहजादियां हैं जिनका रंग सोला है। हुजूर फरमाते हैं ये भी हमारे शहजादे हैं। एक बात सुन लो एक बात। तुम्हें जो दूसरी कौमों से लड़ना चाहते हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं, आज इस वली की जनाज़े वादा करो, नबी से वफा, नबी से वफा, आले नबी से वफा, खाला से वफा, आले असहाबो इतरत से वफा, औलिया से वफा, दीन से वफा, और अपने हिंदुस्तान से वफा, अपने देश से वफा। दो पंडितों के इसमें वीडियो है मेरे पास। उन्होंने कहा मुसलमानों के मुल्लाओं, तुम्हारे मुल्ला कह रहे हैं फातिमा ने खता करी, शर्म करो, हम हिंदू हैं, ताजिया सर पे रखते हैं, हम पंडित हैं, तुम्हारे नबी की बेटी को मानते हैं। लेकिन तुम्हें कहा जाता, उसी कमबख्त ने कहा कि चेहरे मुस्तफा देखना भी काम ना आया। अरे वो चेहरा तो वो है कि इन कुत्तों की अकल क्या है? आंसू की अकल दंग है, आंसू की अकल दंग है। तो सुनो मेरी बात। फिर क्या कहते हैं? नबी का चेहरा देखना काम ना आया। मादरा कहो, ये नबी दिखा रहे 1400 साल के बाद मेरे नाइब का चेहरा देखो, चेहरा देख लो कि इब्न ज़हरा को दूल्हा बनाया गया आज सल्ले अला। हाँ, इब्न ज़हरा को दूल्हा बनाया गया आज सल्ले अला। मुस्तफा के चमन की फमन और है ये चमन और है, मुस्तफा के चमन की फमन और है ये चमन और है, शाह अबरार की अंजुमन और है ये चमन और है, ये चमन और है, शान आले हुसैन हसन और है, शान आले हुसैन हसन और है ये चमन और है। बरेली बाद में, मसौली बाद में, बेगराम बाद में, महाराणा बाद में, पीर मल्ला बाद में, मुदर्रिस बाद में, मदरसे बाद में, अजमेर बाद में, बगदाद बाद में। ये जो न थे तो कुछ न था, ये जो न हो तो कुछ न हो, ये जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बस आखिरी बात कह दूं, आखिरी बात, यह जलवा क्यों देख रहे हैं? मैंने बहुत भीड़ देखे, मजहर आला हजरत, आला हजरत सरकार, ये चांद वो है और उनके शहजादे तुम देख रहे, इन्होंने अपना नहीं बनाया। मसलक आला हजरत क्या है? एक जुमले में कह दूं, एक जुमले में पीर बाद में, मुल्ला बाद में, ये फर्ज वाजिब नहीं है। मसलक आला हजरत ये है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा या रसूलल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। बस अपनी आखिरी बात पूरी कर दो। इनकी जिंदगी देख लो, उठना देख लो, हजरत मासूम मिल्लत सरकार का बैठना देख लो। गाँव है हक है, बम्बई है हक है, अपने है हक है, अमीर है हक है, गरीब है हक है। क्या है मसलक रज़ा? एक जुमले में पैगाम दे के जा रहा हूँ, या रसूलल्लाह बहन में ज़बा
तुम्हारे लिए, बहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबाब चले के बाग फले, सबाब चले के बाग फले, वो फूल खिले, वो फूल खिला, वो फूल खिले, वो फूल खिला, वो फूल खिले, लेवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा हमारी ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हकीकत का खात्मा, इस वक़्त के नूरे हैं, खात्मा के दिल का चैन, ज़माना के बैर, हुजूर बज़र आला हज़रत, मासूम मिन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हज़रात, अब आपके सामने सरकार हुजूर मदहर आला हज़रत, सरकार हुजूर मदहर आला हज़रत के शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत, उनके शहजादे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फरहान रज़ा साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। एक जरूरी ऐलान मैं आपको बता दूं, ये ऐलान कल पीलीभीत शरीफ के जुलूस के अंदर भी हुआ और आज भी आपके सामने शेर हिंदुस्तान और हुजूर नासिर मिल्लत की सरपरस्ती के अंदर ये ऐलान आज किया जा रहा है। तो सरकार हुजूर मासूम मिल्लत ने अपनी हयात ज़ाहिरी के अंदर अपने शहजादे हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद मेहरान रज़ा साहब किबला को अपना कायम मकाम नाइब मुफ्ती आज़म पीलीभीत शरीफ कायम फरमाया था। उसका ऐलान कल पीलीभीत शरीफ के अंदर किया गया कि अब इसकी जिम्मेदारी मेहरान मिल्लत के पास और मुफ्ती आज़म पीलीभीत शरीफ बनाया। नारा लगा दीजिए। आला हजरत अज़ीमुल मर्तबत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मियाँ उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, आका जब याद आ गई है सब वक्त भुला दिए हैं, या तो यूं तड़प के जाए या वही काम से छुड़ाए, मिन्नत गैर क्यों उठाए कोई तरस जताए क्यों, मिन्नत गैर क्यों उठाए कोई तरस जताए क्यों। और मैं एक बात आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यतीम वो है रोए अपनी किस्मत के ऊपर, वो जिनके हाथों में दामने गौस ना रहा, जिनके हाथों में दामने खाजा ना रहा, रोए वो जिनके हाथों में दामने आला हजरत ना रहा, रोए वो जिनके हाथों में दामने अहले बैत ना रहा। हमें तो हमारे वालिद ने और इन अल्लाह वालों ने दामने अहले बैत देकर बता दिया कि अहले बैत वाले न यतीम होते हैं और न किसी बात का उन्हें गम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और एक बात बता दो, मासूम मिल्लत ने जो कमरे वहाबियत तोड़ी है, जो देवबंदियत को अपाहिज किया है, जो नदवियत को लूला और लंगड़ा किया है, तो वो सोचा अभी खत्म ना हुआ, मासूम मिल्लत ने वो सोचा हमें थमा दिया है। अब सोचा मासूम मिल्लत का होगा, वही सोचा अब वहाबियत को और अपाहिज करेगा, देवबंदियत को अल्लाह करेगा। चीख पड़े चोटी के वहां पे, चीख पड़े चोटी के वहां पे, और भाग दिए हर
आ गए हैं। आज भी ये वहाबी तुम्हारे इलाके की दरगाह को मिसमार करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें तो रोटी बोटी है, तुमसे वलीमा नहीं छूट रहा है, तुमसे हलवा और माना नहीं छूट रहा है। आज मैं उनकी पनाज मदद मांगू से कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और याद रखो हुजूर मासूम मिल्लत, और ये भी इनकी करामत है कि पीलीभीत से चले हैं तो ताज़िया हुसैन आगे आगे है। ताज़िया हुसैन का हक हुसैन 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 और एक मैं बात बता दूं, एक दो नहीं 15 20 25 जितने हजरत के उस DCM के अंदर मौजूद थे, जिस वक्त वो जनाजा शरीफ रखा गया और हजरत के सराहने वो ताज़िया शरीफ जो भी आप देख रहे थे आगे आगे चल रहा था, वो ताज़िया शरीफ हजरत का जनाजा शरीफ रखा, उसके नीचे रख दिया। और उसके बाद जब देखा तो एक मैं खुद गवाह, मशारिफ मियाँ वो गवाह, फरमान मियाँ वो गवाह, बाकी 25-30 लोग वो गवाह। हजरत का जनाजा ऐसे उछल, हजरत का अल्लाहु अकबर ऐसा उछल रहा जनाजा। मुझे लग रहा हजरत जलाल में क्यों है, समझ में नहीं आ रहा इतना जलाल क्यों फरमा रहे हैं। जनाजा शरीफ उछल रहा है, ऐसा लगता उछल के बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें उन्होंने किया कि हजरत का वो गहवारा, वो पलंग पीछे किया और जनाजा शरीफ DCM के नीचे रखा। DCM की जो पतरा नीचे का होता है उस पर पतरे पे रखा। मैं थोड़ी देर बैठा कि हजरत ख्वाब में आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी वक्त में जब भी सोचा रजा आवाज दूं तुझको, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। हजरत ख्वाब में आए और हजरत ने फरमाया बेटा तुमने मेरे अल्लाह पैर ऊपर थे और इमाम अली मकाम का रोजा मेरे नीचे रख दिया तुमने। बेटा वो नीचे रोजा था इसलिए वो मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैंने जैसे ही वो ख्वाब देखा उसी DCM के अंदर मुशाहिद बगल में बैठे थे, उनको बताया ये शान मासूम मिल्लत की है और अपने दरवाजे के ऊपर अल जामियतुल हज़रतिया पर रोजा इमाम अली मकाम को रखकर पैगाम दिया, चले करे चलने वाले, मरा करे मरने वाले, और जिसके दिल के अंदर अगर हवस चुटकियां ले और जिसके दिल के अंदर अगर ख्वाहिश चुटकियां ले तो अल जामियतुल हज़रतिया में ये फकीर मौजूद है, जब चाहे बात करने आ जाए। करामात मासूम मिल्लत, करामात मासूम मिल्लत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खुलफाए राशिदीन, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, फैज़ान फारूक आज़म, फैज़ान शोहदाए करबला, फैज़ान सज्जदा फातिमा, फैज़ान इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फैज़ान इमाम बाक़िर, फैज़ान इमाम रज़ा अली, फैज़ान गौसे आज़म। और ये फातह कश्मीर मौजूद है, हमें चलाया इन्होंने है, ये नासिर मिल्लत मौजूद है, हमें बताया इन्होंने है, हमें सिखाया इन्होंने है। और ये सीनियर डॉक्टर है, सीनियर, और सीनियर डॉक्टर अपनी मौजूदगी में हम जैसे जूनियर से कहता चला छुरा को सिपा कर फिला कुल्लियत को। अगर कहीं गड़बड़ी होगी तो हम है ना, ये है ना। लेकिन बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, हुजूर मासूम मिल्लत ने अपने खानदान की धूम नहीं मचाई, हुजूर मासूम मिल्लत ने नबी के खानदान की धूम मचाई है, हुजूर मासूम मिल्लत ने नबी के नवासों की धूम मचाई है। और सुन लो, जब धूम मचाई है तो आला हजरत बोले न उनकी धूम कम होगी न उनके आशिकों की धूम कम होगी, वही धूम वही धूम वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। हम
लाठी चलेगी सुन लिया, किस पे चलेगी? बैठे गोंडा बस्ती में हो और तुम्हारे डैडी कराची में उस तंजीम को मानते हो। गौस यहाँ, साबिर भैया यहाँ, वारिस भैया देवा में। मैंने देखा हाई कोर्ट का जज चला आ रहा है, दुबे चले आ रहे हैं, राम प्रताप चले आ रहे हैं, यादव चले आ रहे हैं, हिंदू चले आ रहे हैं, और मुसलमानों को मुल्ला बहका के पीर करे कराची को मानो। अरे कराची को हमारे बाप ने नहीं माना, पाकिस्तान को हमारे दादा ने नहीं माना, हिंदुस्तान हमारा देश है। और आज हजरत ने फरमाया लाठी चलेगी हिंदुस्तान के गद्दारों पे, बोलो लाठी चलेगी हिंदुस्तान के गद्दारों पे, चलेगा हिंदुस्तान के गद्दारों पे, चलेगा हिंदुस्तान के गद्दारों पे, झंडा चलेगा हिंदुस्तान के गद्दारों पे। हमें पाकिस्तान से मतलब न हमें विदेश से मतलब, हमें अपने देश से मतलब, हमें ख्वाजा से मतलब। दीन मजहब जिंदाबाद, हिंदुस्तान फरमा दिया। सुन लो, हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आखिरी वक्त के अंदर कुछ फैसले ईमान वालों के जनाजे करेंगे। तो आज जनाजा मासूम मिल्लत का फैसला कर रहा है कि अकबर कौन है। क्या बात है। और याद रखो कि कोई भी आदमी, अभी आपने बार बार सुना, न हम पाकिस्तानी तंजीम को मानते हैं, न हम दावत इस्लामी को मानते हैं। और याद रखो, पाकिस्तानी तंजीम को मानते हो? पाकिस्तानी तंजीम, पाकिस्तानी तंजीम, विदेशी तंजीम, हमारा हिंदुस्तान। और याद रखो, न हम तकहीरियत को मानना दरकिनार, हम तकहीरियत को जो मानने का दावा करता अल जामियत अल हज़रतिया से लात मार के निकालते हैं। हम कहते हैं जो नबी का है वो हमारा है, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं है। ऐलान यही है, वही ऐलान जो करबला में था, वही ऐलान जो बद्र हुनैन में था, वही ऐलान जो उहद में था, वही ऐलान आज भी है कि या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तुम्हारे दुश्मनों के सर को हेलो सलाम बरकातहू कदरे नेमत बसे अज़वाले नेमत। नेमत का एहसास उस वक्त होता जब नेमत चली जाती है। वही मैंने अपने भाई करम फरमा से कहा, बस अभी जनाब सच्ची तौबा कर लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा जहाँ पसीना गिरेगा हशमत अली खां के खानदान का वहाँ खून गिरेगा। इनको बड़ा सताया गया, गैरों ने नहीं, अपने मौलवियों ने पैसे ले लेके, अपने मौलवियों ने पैसे ले लेके, मगर उन्होंने अल्लाह वही कहा जो हक था, वही कहा जो सच था, वही कहा जो मसलके आला हज़रत था। अक्सर फरमाते थे दिल के फबूले जल उठे, सीने दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अल्लाह अल्लाह दूसरे नहीं, हशमती कहलाने वालों ने किया है उनके साथ, दूसरे नहीं, रज़वी कहलाने वालों ने किया है उनके साथ। वो मुजाहिद है जिसने न सेठियों को देखा, न पैसे वालों को देखा, न कहना चाहिए करोड़पतियों को देखा, जब भी देखा और जब बात करी तो दीन की बात सुन लो पीएम ऑफ इंडिया, बात करता हूं डॉक्यूमेंटली। मुल्ला पीरो सुधर जाओ, वरना अगर नहीं सुधरे देश से गद्दारी करी अभी और पिटोगे, और पिटोगे। इंडिया का पीएम तुम्हें समझा रहा है, मेरे पास बयान है लोकसभा का, वो प्राइम मिनिस्टर कहता है मुसलमानों सच्चा इस्लाम समझना है, आ जाओ निजामुद्दीन औलिया के रास्ते पर, आ जाओ मोइनुद्दीन के रास्ते पर। तो एलआईओ भी सुन ले,
اور प्रशासन اور सारे सेवा करने वालों को कमेटी की तरफ से धन्यवाद शुक्रिया। हिंदू तक तेरा कायल है, लेकिन एक बात समझा दूं हिंदू मुसलमान सबको, जो बाबा का नहीं हो सकता वो देश का नहीं हो सकता, जो हुसैन का नहीं हो सकता वो देश का नहीं हो सकता, जो ख्वाजा का नहीं हो सकता वो देश का नहीं हो सकता। देश का वही होगा, देश में जान वही देगा जो अपने नबी का वफादार है और नबी का चाहने वाला होगा, नबी से प्यार करने वाला होगा। लिहाजा मैं मुझे आज पढ़ लो जनाजे, आज जनाजे भी पढ़ लो। अच्छा दुनिया दो रोजा है, तुम भी पढ़ो। हाँ अंदर हाशमी तुम भी पढ़ो, दुनिया दो रोजा। फरीद भाई आप भी पढ़ो, दुनिया दो रोजा। आज जनाजे पे सच्ची तौबा करके कह दो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो। इंशाअल्लाह फिर देखना सारी परेशानी दूर, सारी उल्फत दूर। उन्होंने कभी अपने आप को नहीं मनवाया, जब भी बताया सच्ची बात बताई। मगर तुमसे क्या कहे, हशमतियों ने उनकी मुखालफत करी, रज़वी कहलाने वाले मुल्लाओं ने मुखालफत करी, तथीरी मुल्लाओं ने, मगर उस शख्स ने न हवाओं को देखा, न फिजाओं को देखा, न हालात को देखा, न ये देखा ये अच्छन है, न ये देखा ये अनवार है, न देखा ये अजमेरी है। जब भी देखा उस जात ने तो ये देखा कि रसूल पाक का दीन, रसूल पाक की शरीयत, मकरपुर 2 कदम पे है। मकरपुर हिंदू था, बोला गुरुजी मिठाई खाओ, हमने कहा गुरुजी कौन? पुणे के हिंदू है, दरगाह पे सेवा कर रहे हैं। अरे मुल्लाओ आज आतंकवादी कहते हो, पुलिस पकड़ रही है, पुलिस ऐसे नहीं पकड़ती है। और पता ही वैसी और ये क्या समझाते हैं सुने कुल्ली, जब तुम्हें कोई मारेगा तो नहीं पूछेगा बरेलवी हो के सुन्नी के शिया, कहते हैं बोलो, कहते हैं बोलो, कहते हैं। मैंने कहा अब जमाना बदल गया, अब जब तुम्हें पुलिस ठोकेगी तो पहले पूछेगी हुसैनी हो, बोलो दरोगा जी छोड़ दो, बोलो यजीदी हो, बोलो दरोगा जी ठोक दो। तो देश का नहीं वो हमारा नहीं। अल्लाह अल्लाह ऐलान कर दो, क्या है जो भी वहाबी देवबंदी तवज्जी हो तुम क्यों करो, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भाई मौजूद है, दूसरा उनका ये भाई मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कल को कहेंगे वो तुम्हारे चचा थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी तो चचा है, बाद में बच्चा है। फिर मत कहना, फरमाते आला हज़रत सरकार 70 अच्छा सुनो, एक कब्र में अज़्ज़हे हैं और ऐसा काटेंगे। अनवर भाई सुनो, कोई नहीं होगा अंधेरा घर, दम घुटता, दिल उठाता, खुदा को याद कर प्यारे आने वाली। सुन लो अनवर भाई, ये दाढ़ी काम की नहीं, ये रोजा काम का नहीं, ये हज काम का नहीं। अगर इश्क़ रसूल है वहाँ कौन सा सिक्का चलेगा? मुझसे मत पूछो, बरेली वाले आला हजरत से पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँ
नमाज की रट लगाने वाला मुल्ला तो जा खारान की चोटी पे जा, देख सुन्नत तरीका क्या है। दाढ़ी न थी, नमाज न थी, रोजा न था, उस वक्त मेरे आका जलवा कर दिए। इधर देखो, अपने नाना जान की सुनो, मेरे आका जलवागर हुए, फरमाया पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह। न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात। मुफस्सिरीन किराम, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर नमाज पहले आ गई होती, रोजा पहले आ गया होता, हज पहले आ गया होता, तो लोग कहते नमाज पढ़ी तो सहाबी बने, हज करा तो सहाबी बने, ज़कात दी, मेरा कलमा पढ़, मेरा चेहरा देख, सहाबी बन जाए। ओ सुने कुल्ली मौलवी सर, ये है सुन्नत तबलीग, न दाढ़ी न नमाज न रोजा। अब पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, तो मैं ये कहूँगा नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये कहूँगा मुहम्मद सल्लल्लाहु सुनो, सुनो कुल्ली पीर, सुनो कुल्ली मौलवी, सुन कौम को गुमराह करने वाला मुल्ला, सुन नेताओं से पैसे लेके पैसों पे बिकने वाला मुल्ला, अल्लाह अल्लाह। अब सुनाओ, सुनो लहद में, लहद में शेक रुखे शहर का दाग लेके चले, लहद में शेक रुखे शहर का दाग लेके चले, कि अंधेरी रात सुनी थी शराब लेके चले, अंधेरी रात। सुन, कौम को लूटने वाला सुन, ये हारिस बिल्लाह का जनाजा है। तौबा कर ले, तौबा कर ले और पढ़ ले, खुदा की कसम जो सुन्नी शरीक होगा, खुदा की कसम जन्नत सुभान लहद में शेक रुखे शहर का दाग लेके चले, लहद में शेक रुखे शहर का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी शराब लेके चले, अंधेरी रात। श्री फरमाया नमाज लेके चले, रोजा लेके चले, हज लेके, अरे पिया का सुभान अल्लाह, इश्क लेकर चले। तभी आला हजरत ने लिख दिया, क्या लिखा? इश्क तेरे सदके जलने से छूटे ससते, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे ससते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग। दो जुमले सरकार मासूम मिलत के बड़े सिखाते हैं, आप दो जुमले सुनिए, बस एक बात कहता हूँ, पुलिस
देश के गद्दार पकड़ती है, चोर पकड़ती है। हमने बंबई में कहा था हशमतियों से हाथ मिलाओ, हम भी देश के गद्दारों को पकड़ते हैं। और एक वादा करके जाना है कि आगे हम सबको काम क्या करना है। सोने वाले जागते रहिए, सोने वाले जागते रहिए, सोने वाले जागते रहिए, चोरों की रखवाली है, चोरों की आला हज़रत पीर मुल्ला नहीं कहा, कहते बेदबी करती अदब उसका है जो नबी का है, जो नबी का नहीं ठोकरों में है। सोने वाले जागते रहिए, चोरों की रखवाली है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल दाइम शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, इस मुर्दार कसम काबे की, कसम काबे की, आज भी होशो ख्वाजा अहले बैत हुकूमत बांट रहे हैं, तख्तो ताज बांट रहे हैं, लेकिन जरा सी चेयरमैनी विधायकी पे बेहोश हो जाते हो, मिलता उनको है जो दामन पकड़े रहते हैं, वो मुर्दार है, फानी है, इसमें क्या ललचाए। शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल दाइम शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है, दुनिया देखी भाली। और सुन लो, कुत्ता कुत्ते की मौत मरेगा, शेर शेर की मौत मरता है। वो शेर के बेटे हैं, वो तो अहले बैत ने भीड़ करा दी, वो तमन्ना नहीं करते हैं, आज सब बरेलवी कहते हैं। आला हजरत आपकी जिंदगी में कितने बरेलवी थे, वही इन पे गुजरी, वही मासूम मिल्लत थे। मैं नहीं कहता, सुन लो आला हजरत से, साथी साथी कह के पुकारो, साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला कर सर दे पट को, चल रे मौला वाली है, फिर झुंझला कर सर दे पट को, चल रे मौला। आँख से काजल साफ चुरा ले, बाबू चोर बना के है, तेरी बतेरी बाकी है, तूने नींद निकाली है। सरकार मासूम मिल्लत के बड़े शहजादे अल्लामा मुफ्ती फरमान साहब कुबला, आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। इलाका सादुल्ला नगर के गरीब सुन्नी देहाती मुसलमानों, तुमको बहुत मुबारक हो। हजरत को ले जाने के लिए बहुत लोग लगे, वो कहने लगे फरखाबाद वाले कि हुजूर हम 100 बीघा जमीन देंगे, आप यहाँ आ जाए। लेकिन हजरत ने फरमाया, ए बेटा मुझको इन गरीब सादुल्ला नगर के क्षेत्र के इन गरीब किसान मुसलमानों से मोहब्बत है और इनको मुझसे मोहब्बत है, मैं इन्हीं के पास रहना चाहूँगा। मुबारक हो इलाका सादुल्ला नगर की मुसलमान। आज उस खानदाने मदरे आला हजरत का एक हीरा आपके इलाके के अंदर नस्ब कर दिया गया है। सुभान अल्लाह, आज हीरा सादुल्ला नगर के अंदर। सुभान अल्लाह, नबी हमारा बोलो क्या मर्द हो। और सुनो नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, वो तकीए कुत्तों का नबी होगा, हमारा नबी मुख्तार दो आलम, नबी हमारा, मुख्तार दो आलम, नबी हमारा, मालिक जन्नत, नबी हमारा, मालिक जन्नत, नबी हमारा, साहिब कासर, नबी हमारा, फैज़ान सरकार मासूम मिल्लत। और हमारे हाफिज अब्दुल समद साहब और अपना जो तिबरा और यहाँ ऐतहा के कुछ लोग गवाह हैं, हजरत ने फरमाया कि अगर मेरे घर वाले मुझको यहाँ पर लाने न दे तो तुम लोग जबरदस्ती मेरे जनाजे को ले जाओ। आज वहाँ पर जब हजरत
حضرت کا وصال ہوا تو ہم لوگوں نے مشورہ کیا اور سنو بالکل طبیعت حضرت کی چاقو چوپن بے شک بمبئی سے تشریف لائے اجمیر شریف زندہ آباد بمبئی سے تشریف لائے ان سے غریب نواز کی چھٹی میں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا یہ ٹائم اجمیر میرے آنے کا نہیں تھا، یہ ٹائم تو میرا کہیں اور جانے کا تھا، لیکن غریب نواز نے کہا کہ یہ یہاں آئے گا پھر جائے گا۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں آنے کا میرا وقت نہیں تھا، بس غریب نواز نے بلا لیا آپ یہاں پر، غریب نواز نہیں مانے۔ پھر کوئی شریف کی محفل ہوئی، سبحان اللہ، بنفس نفیس تشریف فرما رہے ہیں، پھر حکم کیا مولانا میران رضا صاحب مفتی میران رضا صاحب کی بچی اور ہمارے آزاد بہنوئی ہیں ان کے بچے کی بسم اللہ خانی پڑھائی، اس کے بعد نیچے تشریف لائے، پھر فرمایا بیٹا کب گھر چلنے ہو؟ میں نے کہا جو اب کوئی شریف ہوا ہے 2-4 دن رک کے گھر چلتے ہیں۔ فرمایا بیٹا تمہارے پاس صرف 2 دن کا وقت ہے ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا کیوں پریشان؟ فرمایا میں نے کیوں پریشان ہو جاؤ گے؟ فرمایا اگر 2 دن مجھ کو لے کے نہیں گئے تو جنازہ لے کے جاؤ گے اور راستے میں پریشان ہو گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ہم نے حضرت سے کہا حضرت ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ہر چیز کھول کے نہیں بتا سکتا، جتنا بتانے کا تھا اتنا بتا دیا۔ اب تم سمجھو کہ پریشان ہو کے جاؤ گے یا ویسے ہی جاؤ گے۔ دوسرے دن صبح ہم لے کے نکلے، تیسرے دن حضرت کا وصال ہو گیا۔ حضرت سے ناصر بھائی سے بھی بندے نے ارشاد فرمایا کہ جا رہا ہوں تیری بھی اور ہو گیا۔ اب سنیے حضرت کھڑے ہیں اور طبیعت علامت بیداری تمنا تو یہ تھی کہ حضرت بیان کر دیتے۔ مفتی فرزان صاحب تھے، حضرت سرکار ناصر ملت تھے۔ میاں سنو، اگر سمجھ جاؤ تو سمجھ لینا، نہ سمجھو تو تمہیں خدا سمجھے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ کیا سمجھو گے؟ صحیح کہا بیدم وارسی نے، اہل دل کو دل والے جانتے۔ بمبئی ہے، بائی پاس ہوا، بائی پاس حضرت ہیں، مولانا فرزان صاحب ہیں، پپرا کا دورہ ہوا، بعد میں طبیعت جب ٹھیک ہو گئی، پتہ نہیں 8 مہینے 7 مہینے 6 مہینے سرکار معاف فرمائے۔ ڈاکٹر نے کہا انڈیا کا بنیادی بڑا ڈاکٹر ٹاپ ظاہری اعتبار سے کہ ان کو ہلکے بولنا ہے، ہلکے۔ میں پپرا میں تھا، فرمایا قاری حافظ صاحب فلاں فلاں گاڑی لاؤ، ڈاکٹر جھوٹا، اللہ سچا، اس کا رسول سچا، اہل بیت سچے، پنجتن پاک سچے، مولا علی سچے، غوث و خواجہ سچے۔ معصوم رضا جائے گا اور دیش کے غداروں کی اور نبی کے دشمنوں کی ایسی تیسی کرے گا۔ یا جہاں تیز بولنا منع ہو وہاں بائی پاس کے بعد تقریر کرنے چلے گئے، لکھا اعلیٰ حضرت نے اور بتا بھی دیا اعلیٰ سرکار نے، مرتن من دھن روک دیا۔ لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا ان حضرات کو، جو ہے اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، ہمیں تمہیں تمہارے اہل بیت کو بھی نشان اہل بیت کے لیے عمر خضر عطا فرمائے۔ وہ ثابت کر دیا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ وہ جو قاری حافظ صاحب ہوں گے کہ بکرا منگاؤ صدقہ کرو، آزاد سے پوچھو حضرت کے داماد، کہا حضرت بکرا کس کا؟ کہا ہمارے ناتی کا، ہمارے نواسے کا۔ کہا ولادت ہو گئی؟ کہا ہوئی نہیں ہے، آنے والا ہے۔ کیا سمجھو میاں اقبال کہہ گیا، اقبال نے بتا دیا آپ کی محمد سے وفاتو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ اب ایک اعلان ضروری یہ ہے کہ آپ پورا علاقہ جانتا ہے کہ حضرت اعلان کرتے تھے کہ وہابی، دیوبندی، سنا کلی، حافظی، مرزائی، تطہیری، مولوی، پیر، کوئی عام، سب اس جنازے سے اگر ہو تو باہر نکل جائے، اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی جانتا ہو آپ کے کسی کے بغل میں کھڑا ہو تو نکال کے باہر کر دو، یہ اس کا جنازہ
रसूल के दुश्मनों को शिकस्त न करने दी, आज उसके जनाजे में कोई शरीक ना हो। अगर ये जनाजे के अंदर मजमा पूरा चला जाए तो भी हमको गम नहीं है, हम अकेले काफी है। और फरमाया हजरत ने, ऐ मासूम रज़ा के चारों लोगों सुनो, मेरे जनाजे को उठाने के लिए 4 पाए हैं, 4 औलादें काफी है। नहीं जरूरत है मुझे किसी से नौकरी की, नहीं जरूरत है किसी वहाबी की, नहीं जरूरत है उनसे मिलने वालों की, नहीं जरूरत है उनसे बात खबसावा करने वालों की। और सुनो, हुजूर शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद, हुजूर नासिर मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मशहूद मिल्लत जिंदाबाद, सरकार मुशाहिद मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर मदर आला हज़रत जिंदाबाद। और सुनो, हजरत की आखिरी आरामगाह की बात आई, बहुत जगह देखी गई, लेकिन हजरत ने अपनी टर्म बम्बई के अंदर जो गुजारा वो हाजी शमीम साहब के घर में। और जब यहाँ बहुत जमीन देखी गई, समझ में नहीं आई, मैंने हाफिज सलीम साहब को फोन किया, मैंने कहा आपकी जमीन है, अगर आप कहें तो कुछ। फरमाया कि जैसा चाहो वैसा करो, पूरी जमीन मैंने हजरत को दे दी है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा पूछ लीजिए, घर में कल्लू भाई है, उनकी वालदा है, बोले कि सबसे पूछ लिया, आप लोग जैसा चाहो वैसा करो, पूरी जमीन मैंने हजरत को दी। सुभान अल्लाह। उन्होंने पूरी जमीन हजरत को दी। उसके पीछे 50 फीट जमीन और है, उसके अंदर हमारे पिपरा अपना जो के मोहम्मद अहमद भाई और फकीर मोहम्मद भाई, इन्होंने 50 फीट जमीन और भी। अल्लाह इन सबको आज़त का फ्यूज अता फैज़ अता फरमाए और दायरे के अंदर बरकत अता फरमाए, सब बंदी के लिए फौरन। और उम्रे तमाम अपनी मोहम्मद के नाम की, सरकार दो आलम के वफादार अलविदा। लिखते हुए कफील कलम मेरा रो पड़ा, लिखते हुए कफील कलम मेरा रो पड़ा। ए करबला ए असर के सालार अलविदा। आगे बढ़ते रहो भैया। जारी रहे तारों से जज़ा, जारी रहे तारों से जज़ा। मज़हब अहले सुन्नत का, मज़हब अहले सुन्नत का, मसलक से आदम का, मसलक आदम का, मसलक आला हज़रत का, मशरक शेरे सुन्नत। नारे तकबीर, या
जन्नत की चाबी नहीं है। मालिक जन्नत नबी हमारा, मालिक जन्नत नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, पीछे नबी हमारा, 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 या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या मरहबा 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 नासिर हो, नासिर हो, नासिर हो, नासिर हो, नासिर हो, साबिर हो, साबिर हो, साबिर हो, इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, नबी हमारा, 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 राजा का अगवा है, नबी हमारा, 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 बेशक सुभान अल्लाह, नबी हमारा, 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 क्या है बरेलवियत, सर कटाते हैं तेरे नाम। अरे हिजड़ो सुनो, क्या है बरेलवियत, अहले बैत की मोहब्बत का नाम बरेलवियत है, सहाबा की पैरवी का नाम बरेलवियत है, नबी की गुलामी इत्तिबा का नाम बरेलवियत है, अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत का नाम बरेलवियत है, उनके दुश्मनों से दूर रहने का नाम बरेलवियत है। आज भी तौबा कर लो, ये जुब्बे चूतरों के नहीं देखे जाएंगे, में नहीं देखे जाएंगे। वो कव्वाल तुम सुरे कुलियों से बेहतर है जो कहता है कि तुमने मोहब्बत की हो तो जाए। माते आला हज़रत बंदा इश्क़म, हमारी इश्क़ का बंदा। जितने सुले कुल्ली कुत्ते मुल्ला पीर मर जाए, अली को किसी की जरूरत नहीं है। खुदा के महबूब ने कह दिया, मन कुंत मौला बाद नारे तकबीर, नारे फातिमा या फातिमा, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, जिंदाबाद मरहबा 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 नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, नबी हमारा, नबी आमन्ना बिरसूल सल्लल्लाहु
درود پاک پڑھتے رہیے، بہت مبارک موقع ہے، درود کا ذکر رکھیے اور یہ بہت مبارک صافی ہے۔ اے معصوم ملت مرشد ہمارا جب پیارا غوث کا ایسے کرنا پیار ہم تیرے ہونا، اے معصوم رضام اے معصوم ملت مرشد ہمارا جب پیارا غوث کا اے معصوم ملت مرشد ہمارا جب پیارا غوث کا हाँ वही तो